मैंने तो इरम को सिर्फ इंटरव्यू करना था, मुझे ये नहीं पता कि इरम टस्ट हो जाएंगी। सॉरी इरम, आपको खफा तो नहीं किया मैंने। आज बर्फ़बारी बहुत तेज़ हो रही है। रात को बारिश हो रही थी, बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, और आज दिन के दौरान हर तरफ एक सफ़ेद तह फैल गई है बर्फ़ की। ये हमारा सामने वाला घर है। इस बंदे को आप देखें, बर्फ़ हटा रहा है। ये हमें भी अब करना पड़ेगा। और नॉर्वे में रहने का ये काम जो है ना, सबसे लीस्ट फेवरेट है मेरा, क्योंकि सर्दी में ठंड में बाहर निकलना, बर्फ़ पड़ रही हो, सुबह सुबह हवा चल रही हो, और आपको ख़ुद ही अपने घर के सामने से बर्फ़ हटानी पड़ती है, जैसे कि ये आदमी कर रहा है। गुड जॉब। मेरे से नहीं होगा आज। जो बाहर रोड है वहाँ से तो जो गवर्नमेंट है वो ख़ुद, जो लोकल गवर्नमेंट है उनके ख़ुद ट्रक आते हैं, बर्फ़ हटाते हैं, लेकिन अपने ड्राइववे से और अपने सैन में से ख़ुद ये हटानी पड़ती है। लेकिन ये भी बहुत काम होता है। तो ये है सिचुएशन। आज बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल बर्फ़ से कवर्ड हैं। लेकिन हमें बाहर जाना है, एक छोटा सा ट्रिप करना है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है दुकान से, और मैंने कैमरे के लिए एक नया लेंस भी ख़रीदना है। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे पास ये वाली गाड़ी भी है, लैंड क्रूज़र, और इस मौसम में इस गाड़ी का बहुत काम आता है। फिसलती भी नहीं है, और अगर कहीं चढ़ना हो तो आसानी से चढ़ जाती है। तो हम ज़रा बाहर एक ट्रिप लगाने जा रहे हैं। और हम वापस घर आ गए। ये है जो मैंने लेंस ख़रीदा है, ये एक ज़ूम लेंस है, और ये मैंने सेकंड हैंड ख़रीदा है। और अक्सर मैं जो कैमरा गियर है, जैसे कि कैमराज, माइक्स, लेंसेज वगैरह, मैं यूज़्ड ख़रीद लेता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि आपको अच्छी प्राइस मिलती है। जो दूसरे कैमरा इंथ्यूजियास्ट्स हैं मेरी तरह, जिनको इन चीज़ों में दिलचस्पी है, वो अपनी चीज़ों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। और ये वाला जो लेंस है, ये तकरीबन ब्रांड न्यू है। उसने सिर्फ 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे हाफ़ प्राइस में मिल गया, तो इसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं गौर से देखता हूँ, केयरफुली देखता हूँ कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं। और अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो सेकंड हैंड ले लेनी चाहिए, फ़ायदा होता है। I have 3 hobbies. The first one is playing video games. I really like video games because I can like control what is happening, and always it's just really chill. And if I'm really stressed, it's really fun to play it. And yeah, I also like making YouTube videos. I really like the process of editing videos because I can really get creative and show what I want to show. And I also skate. I think skating is really fun because it's a bit hard to learn, but the process of learning is so fun. And when I learn new tricks, I get so happy, and the feeling of accomplishment just makes you really happy by it. Yeah, I also play piano. I think it's so fun when you like see like some notes and just play it, and you play it, and then you actually can play like good. I go to my school to learn piano because my piano teacher, that's where the lessons are. So yeah, she shows me how to play chords with songs, and it's really fun. I also work home. It's kind of like homework. She shows me what I have to work on, and I work on it at home. I also like math. Yeah, I have a few hobbies. The first one I would say is piano. I think I've played piano for 3 years. I started playing in the 5th grade. I usually go to, it's Raphael School because I go to another school now. I go there to play where I have a piano teacher. Raphael also plays piano, so we have our lessons after each other, so yeah. Yes, I really enjoy playing the piano. I've always wanted to learn an instrument, so I'm really happy playing the piano. I like to play the piano because it's very fun to play songs you like, songs you've heard before, be able to play them yourselves and make music.
I also like to build Legos. That's something I have liked to do for a very long time since I was little. I just like, building different things from my imagination and also following instructions and building cool structures. Finally, I am very interested in space and space travel. I would really like to one day be able to be an astronaut or go to different planets. It just really fascinates me, like how big it is and how many different things there are that we don't know about and things to explore. दो 2020 काफ़ी एक तरीके से चैलेंजिंग और एक तरीके से तो आपकी आंखें कई चीज़ों के लिए खुल गई हैं जो पहले आप नहीं सोचते थे, वो अब आपको सोचना पड़ा है। मेरे लिए 2020 एक अच्छा साल था और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये किस तरह कह सकता हूँ। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुशकिस्मत हूँ। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ ये वबा काफ़ी हद तक काबू में रही है। घर के अंदर बंद रह के मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये फ़ील करते हैं कि जो हर रोज़ की जो रूटीन होती है जिसमें से आपको लगता है कि आप किसी तरीके से एस्केप नहीं कर सकते, आपको लगता है यही लाइफ है, यही आप जो सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं, जो आपकी रूटीन्स होती हैं कि उनमें कोई चेंज नहीं आ सकता। आप सोचती नहीं है कि ये पॉसिबल है। लेकिन कोरोना की वजह से मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में एक किस्म का लोगों के लिए आई ओपनर बन गया है कि हो सकता है कि हम जो इंसान हैं थोड़ा सा अपनी जो जिस तरीके से हम अपनी एवरीडे लाइफ जीते हैं उनमें कोई हम चेंजेस हो सकता है ला सकते हैं। थोड़े लोग बीमार हुए हैं, थोड़े लोग फौत हुए हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास अभी तक जॉब है, कई लोगों के पास जॉब नहीं रही। हमारे सर के ऊपर छत है, घर में खाना है। क्योंकि हम घरों में बंद रहे हैं, हम ज़्यादा अपनी जो फैमिलीज़ के साथ हमने टाइम गुजारा है और मेरे ख्याल में कई लोगों ने तो ये देखा है कि उनको ये समझ आया कि वो क्या चीज़ मिस करते थे और एक किस्म की नए रिलेशनशिप्स, ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स होपफुली कई लोगों की हुए हैं। लेकिन उसके बैड एस्पेक्ट्स भी तो हैं। अगर आपकी एक डिसफंक्शनल फैमिली है और आपको ज़्यादा टाइम ज़्यादा एक दूसरे के साथ गुजारना पड़ रहा है, आपको कोई छुटकारा नहीं मिलता, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप जॉब पे नहीं जा सकते, तो ज़ाहिर बात है इस तरह की जो वल्नरेबल लोग हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही बुरा टाइम रहा है जहाँ कोई उनको एस्केप नहीं मिल सका। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन, मेरे ससुराल, मेरे बहन भाई सब सेहतमंद हैं, वो बीमार नहीं हुए। ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात है और इसलिए मैं समझता हूँ कि 2020 कंसिडरिंग एवरीथिंग हमारे लिए एक अच्छा साल था। और ज़ाहिर बात है जो लोग बीमार हुए हैं, जिनके कोई करीबी नज़दीकी फैमिली में, दोस्तों में जिनको कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हुए या उनकी ज़िंदगी वो चली गई, उनके लिए तो बहुत ही एक दुख भरा और एक क्या कहते हैं, एक इससे बुरा मेरे ख्याल में साल हो ही नहीं सकता था। हाँ, हम उस तरह घूम फिर नहीं सके जिस तरह हम पहले घूमते फिरते थे। हम कहीं छुट्टियां मनाने दूसरे मुल्क नहीं जा सके। लेकिन ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप द बिगर पिक्चर को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत रहा हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लिए 2020 एक अच्छा साल था। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग कोई किसी ना किसी को जानता है जिसके साथ एक बहुत ही बुरा वक्त गुजरा। मैं तो इरम को सिर्फ इंटरव्यू करना था, मुझे ये नहीं पता कि इरम टस्ट हो जाएंगी। सॉरी इरम, आपको खफा तो नहीं किया मैंने? नहीं, आपने तो नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं भी किसी को जानती हूँ जिसके साथ एक कोरोना की वजह से हमारी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोरोना की वजह से डेथ हुई है और ज़रा हम सबको बहुत दुख हुआ था। और इस वजह से जो भी आप में से कोई जो देख रहा है, अगर आपके घर में किसी को कोरोना वायरस हुआ हो या उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा बीमार हुआ हो या इवन जो फौत हो गया, तो हमारी हमदर्दी आप लोगों के साथ भी है। तो बस हम ये कहना चाहते थे। हिरम, आप क्या कर रही हैं?
जिंजर ब्रेड हाउस को डेकोरेट करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले इसको बनाना पड़ता है आइसिंग के साथ। जैसे आपको अब नज़र आ रहा है, तो ये एक दफ़ा मैंने जोड़ने की कोशिश की और वो खलैप्स हो गया है, इसलिए अब दोबारा जो है इसको जोड़ने की कोशिश करूँगी। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जो वॉल्स हैं पहले इनको ड्राई होना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो छत इनकी इसकी लगाएंगे और फिर उसके बाद डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट किस चीज़ से करते हैं? हम नॉन स्टॉप इस तरह छोटे चॉकलेट की रंग बिरंगी फिल टाइप जैसे कि स्मार्टीज होती हैं उससे करेंगे, और साइमन जो इस तरह जेली की फिगर्स होती हैं उसके साथ। तो इरम जो एंड रिजल्ट है ना वो इस तरह का होना चाहिए। इस तरह का होगा? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी। कोशिश तो करूँगी, लेकिन मैं पहले से बता दूँ इस तरह नहीं बनेगा। चलें, अच्छा इसके साथ पता हम क्या खाएंगे? क्या? या तो हम एक यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स उनके घर गए थे, तो उन्होंने जिंजर ब्रेड के साथ जी ब्लू चीज़ या सर्व किया था। बिल्कुल। और ब्लू चीज़ ज़रा बताएं वो क्या होता है? ब्लू चीज़ होती है सॉफ्ट चीज़ जिसको वो इतनी देर रखते हैं कि उसमें कोई किस्म ये फंगस के कोई टाइप होती है जो उसके अंदर ग्रो करती है, तो वो जो ब्लू फंगस होती है ना उस चीज़ के अंदर, उसके साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जो क्रीमी चीज़ के साथ जो ब्लू फंगस है वो काफ़ी बिटर होती है, तो उन दोनों का इकट्ठा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, और काफ़ी मज़ेदार होता है एक्चुअली, क्योंकि एक तो वो क्रीमी जायका होता है चीज़ का, और जो मोल्ड है या फंगस उसका वो ज़रा बिटर जायका होता है। तो उसको अक्सर किसी मीठी चीज़ के साथ सर्व करते हैं, जैसे कि ये बिस्किट हो गए या जैम स्ट्रॉबेरीज का या किसी चीज़ का भी, तो उसके साथ वो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बनता है। तो हम आज ये जिंजर ब्रेड के साथ मोल्डेड चीज़ खाएंगे। मैं उसको मोल्डेड चीज़ कहते हैं या फंगस वाला चीज़ कहते हैं? ब्लू चीज़ कहते हैं। हम उसका ब्लू चीज़ खाएंगे, तो वो देखते हैं हम। ये देखें, इरम सिर्फ वो घर नहीं बना रही जिंजर ब्रेड का, इरम ने अपने जिंजर ब्रेड की बिस्किट भी बनाए हैं। गुड जॉब इरम। थैंक यू। बनी बनाए डो तो फिर तो बहुत आसान काम है। ओहो, हर बात नहीं बताते हैं। बस ऑनेस्ट होना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा इरम, निकालें, दिखाएं क्या बनाया आपने। गरम गरम अवन है, मैं दूर से खड़ा होकर देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक ही बंदे का मुंह जलना चाहिए। ये देखें, ये हैं इरम के जिंजर ब्रेड या जिंजर ब्रेड बिस्किट या जिंजर बिस्किट्स। जिंजर ब्रेड ही कहते हैं। वही, ये तो बिल्कुल नरम है। लेकिन अभी ये जब कूल डाउन होंगे तो फिर ये क्रिस्पी हो जाएंगे। चलो ठीक है। और इनके साथ हम खाएंगे ब्लू चीज़ जो उधर खिड़की में पड़ा हुआ है, उसको मैं ज़रा गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये है, क्योंकि जो ब्लू चीज़ है ना वो ठंडा नहीं खाते। अगर आप उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो उसका जायका ज़्यादा बढ़ जाता है। सही है ना? बिल्कुल ठीक। ये तो हर चीज़ के साथ जो है उसको सीधा फ्रिज में से निकाल के नहीं खाना होता, उसके फ्लेवर्स ज़्यादा सामने आते हैं अगर आप उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में रखें। चलें फिर जल्दी तैयार करें, मैं जाके ज़रा आराम करता हूँ। ओके। अच्छा, मैं जिंजर ब्रेड का इंतज़ार कर रहा हूँ, और उस इंतज़ार में मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ बैठकर YouTube देख रहा था, और कुछ चैनल्स हैं जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ। पहले ये देखें, इनका नाम है नॉर्वेजियन ब्राउन ड्यूड। यूट्यूब में मेरी फैमिली का इंट्रोडक्शन। आइए मैं आपको मिलाता हूँ, और अब मिलिए मेरे अबूमी से। अस्सलाम वालेकुम। तो ये चैनल है, इसका नाम है नॉर्वेजियन ब्राउन ड्यूड, और ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। इनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। अभी चैनल छोटा है, तो प्लीज़ आप इनको जाके सब्सक्राइब करें, इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ये और भी ज़्यादा वीडियोस लेकर आएँ। और दूसरा चैनल जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है चैनल मंसूर इलाही भाई का मंसूर भाई का। इसको भी ज़रा आप चेकआउट करें।
इनके ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, फैमिली ब्लॉग्स होते हैं और हमेशा बहुत हम इनको एंजॉय करते हैं। तो अगर आपको फैमिली वाला कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इनको भी जाके सब्सक्राइब करें। मंसूर इलाही नाम है इनका, आप यूट्यूब पे सर्च करें और उनको भी सब्सक्राइब करें। और आखिरी और तीसरा ब्लॉग जो मैं आपको, या यूट्यूब चैनल जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो है सलमान हाशमी का। वो भी मेरे फेलो डॉक्टर हैं, इनको देखें। स्कार्फ खोला, ग्रिल फ्रॉक निकाला, ग्रिल फ्रॉक पहना, हास्कर पहने, टोपी पहनी और लो जी तैयार हो गए वॉरियर। सलमान भाई को हम कहते हैं नॉर्वे के इरफान जुनेजो, क्योंकि वो उनसे कुछ इंस्पायर हैं और बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। वो डॉक्टर हैं, मेरे साथ काम करते हैं, हम एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनके ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा एंजॉयबल होते हैं। तो उनको भी आप जाके सब्सक्राइब करें, सलमान हाशमी। तो ये थी मेरी 3 रिकमेंडेशन और अब हम इंतज़ार करते हैं जिंजर ब्रेड का। अच्छा इरम, आप फारिग हो गई हैं, आपने जो कुछ बनाना था बना दिया, तो दिखाएं क्या बना है। ये देखें, वाह जी वाह, ये घर तो आपने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। उसी तरह लग रहा है जिस तरह डब्बे पर तस्वीर थी, तो गुड जॉब। नहीं वैसे डब्बे की तरह नहीं लग रहा, ऐसा लगता है जैसे किसी 5 साल के बच्चे ने बनाया। नहीं, मुझे तो इसी तरह याद है, इसी तरह का था। देखें ऊपर वो टॉफ़ीज़ भी लगी हुई हैं और आइसिंग भी है और एक प्रॉपर विंटर वाला घर लग रहा है। अच्छा, और टेबल पर और क्या है? और है जिंजर ब्रेड, जिनको हमने डेकोरेट नहीं किया क्योंकि मेरे ख्याल में ये इतने मीठे बिस्किट्स के ऊपर फिर जब डेकोरेट करके तो वो प्यारे तो लगते हैं लेकिन खाए नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। बिल्कुल, और हमने इन बिस्किट्स को खाना है इस ब्लू चीज़ के साथ। ये है ब्लू चीज़, आप देख लें, ये जो आपको बीच में ग्रे रंग की और ब्लू रंग की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये फंगस है। ये जानबूझ के बीच में डाला जाता है क्योंकि इससे एक ख़ास जायका बनता है जी। और ये है जैम, ये मेरा ख्याल है पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन ये भी ज़रा खट्टा मीठा है और हम इसके साथ एंजॉय करेंगे। तो ये था नाजरीन आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और उन सब को जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में हमें सब्सक्राइब किया है, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं। और उम्मीद है हम आप लोगों के लिए और भी इस तरह के वीडियोस लेकर आएंगे। तो अब हम बैठकर बिस्किट एंजॉय करते हैं और आप अपने घर में अपनी कंपनी एंजॉय करें। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।